العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ، اگلی والی عبارت دیکھیں. باب الاذانی حکم الاذانی والاقامتی. سن الاذان والاقامت سنتا مؤکدتا للفرائض ولو منفردا اداء او قضاء سفرا او حضرا للرجال وکرها للنساء. ترجمہ دیکھیے. یہ باب اذان کے بیان میں. حکم الاذان والاقامت، اذان اور اقامت کا حکم. سن الاذان والاقامت سنتا مؤکدتا للفرائض. اذان اور اقامت سنت قرار دی گئی ہے، سنت مؤکدہ، فرض نمازوں کے لیے. ولو منفردن، اگرچہ وہ فرض نماز ادا کرنے والا تنہا نماز پڑھ رہا ہو. ادان او قضان، وہ فرض نماز پڑھنے والا چاہے ادا کر رہا ہو یا قضا پڑھ رہا ہو. سفرن او حضرن، سفر میں ہو یا حضر میں ہو. للرجالی، یہ سنت مؤکدہ ہونا مردوں کے لیے ہے. وکرہا للنساء، اور وہ دونوں مکروہ ہے عورتوں کے لیے. کرہا یہ تثنیہ کی ضمیر ہے، تثنیہ کا صیغہ ہے. کرہ یکرہ باب سمیع اسموں سے آتا ہے. ہما ضمیر کا مرجع وہی اذان اور اقامت، اور وہ دونوں مکروہ ہے عورتوں کے لیے. بچوں، یہاں سے اذان اور اقامت کا حکم آپ کے سامنے عبارت پڑھی گئی، اس کا ترجمہ آ گیا ہے. خلاصہ حکم اور مسئلے کا خلاصہ یہ ہوا کہ اذان اور اقامت یہ دونوں کے دونوں سنت ہے، سنت مؤکدہ ہے، فرض نماز کے لیے. چاہے فرض نماز آپ تنہا پڑھ رہے ہوں، فرض نماز آپ وقتیہ پڑھ رہے ہوں، فرض نماز آپ قضا کر رہے ہوں، سفر میں ہو تو بھی یہی حکم ہے، حضر میں ہو تو بھی یہی حکم ہے. یہ سنت مؤکدہ ہونا مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے دونوں کے دونوں مکروہ ہے. عورتوں کے لیے مکروہ ہونے کی وجہ آپ یہ بتائیں کہ عورتوں کا معاملہ تستر کے اوپر ہے. پردہ داری ان میں رکھا جاتا ہے، پردہ داری کا خیال کیا جاتا ہے. اور اذان ہو یا اقامت ہو، بہرحال اس میں آواز کا نکالنا زیادہ ہوتا. اذان میں آواز کا نکالنا اقامت کے مقابلے میں زیادہ ہے، بہرحال آواز دونوں میں ہے، اس لیے عورتوں کے لیے یہ مکروہ ہے. بچوں، ضروری معلوم ہوتا ہے کہ یہ اذان کے بارے میں آپ کے سامنے کچھ ضروری باتیں گوش گزار کر دی جائے. اذان کے لغوی معنی ہوتے ہیں مطلقاً خبر دینا. شریعت کے اندر اذان نام ہے عبارت عن الاعلام بدخول وقت الصلاۃ بالفاظ مخصوصۃ، مخصوص الفاظ کے ذریعے سے نماز کے وقت کے داخل ہونے کی خبر دینا، یہ اذان کہلاتا ہے. یہ شرعی تعریف کہی جائے گی اذان کی. وہ عبارت عن الاعلام بدخول وقت الصلاۃ بالفاظ مخصوصۃ. اذان کی مشروعیت کے بارے میں آپ یہ یاد رکھتے چلیں، سن 1 ہجری راج قوری ہے. بعض لوگوں نے تو بھی کہا لیکن راج قوری ہی ہے. سن 1 ہجری کے اندر اس کی مشروعیت ہو چکی تھی. شروع زمانے میں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو اور حضرت کو نماز کے لیے جو وہ لے کر اکٹھا ہوا کرتے تھے تو دقتوں کا سامنا تھا.
आ गए, वक्त से पहले आ गए, काफी देर इंतजार करना पड़ा, आए पता चला नमाज हो चुकी है। इन सब परेशानियों की वजह से हज़रत साहब किराम ने एक दफा मशवरा किया कि कोई ऐसी शक्ल इख्तियार की जाए जिससे नमाज की इत्तला हो जाया करे और उस इत्तला के ऊपर हर कोई वक्त पर पहुंचा करे और हर किसी का काम हो जाए, हर किसी को जमात मिले। बाद साहबी ने कहा कि आग जला दी जाए, आग की रोशनी देख करके लोग समझ जाएंगे कि आजान और नमाज का वक्त हो गया है। लेकिन कुछ सहाबे ने कहा कि ये मजूसियों का तरीका है, आग परस्तों का तरीका है, लिहाजा ये ठीक नहीं है। कुछ हजरत साहब किराम ने कहा कि नाकूस बजा दी जाए, छोटी लकड़ी को बड़ी लकड़ी के ऊपर बचा दी जाए। कुछ सहाबी ने कहा कि ये भी यहूदियों के साथ, नसारा के साथ इसमें मुशाबहत हो रही है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आता है, आपने राय दी कि हजरत बिलाल हर किसी को भेज दिया जाए, आजान नमाज करके नमाज का वक्त हो गया, नमाज का वक्त हो गया, ये इत्तला देने के लिए भेज दिया जाए। चुनांचे हजरत बिलाल के बारे में आता, वो मुकर्रर भी कर दिए गए थे, उनकी ड्यूटी भी लग गई थी। इसी दरमियान में एक सहाबी रसूल है हजरत अब्दुल्ला बिन जैद इब्न अब्द रब्बी, अब्दुल्ला बिन जैद इब्न अब्द रब्बी, उन्होंने ख्वाब ये देखा कि एक साहब आसमान से उतरे हैं, दोहरा कपड़ा पहने हुए हैं और वो कुछ अल्फाज सुना रहे हैं। उन्होंने बगौर सुना, एक तरह समझिए कि वो दीवार की किताब लिखा, दीवार के किनारे खड़े होकर के उन्होंने आजान के कलमात कहे। वो वही कलमात थे जो इस वक्त मुरब्बज। हजरत अब्दुल्ला बिन जैद इब्न अब्द रब्बी, अब्दुल्ला बिन जैद इब्न अब्द रब्बी ने जब ये ख्वाब देखा तो हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये ख्वाब बरहक है, ये तुमको फरिश्ते के जरिए से गोया तालीम दी गई है, तुम इसी को लोगों को खबर देने के लिए जरिया बनाओ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखने वाले के बारे में आता, उन दिनों बीमार थे और उनकी आवाज भी पस्त थी, लिहाजा कहा कि हजरत बिलाल को साथ लो, उनकी आवाज बुलंद है, लिहाजा उनको ये कलमात की तलकीन करो, वो बुलंद आवाज बुलंद से वो आजान दिया करेंगे। चुनांचे यही शक्ल इख्तियार की गई और आज तक यही चली आ रही है। आजान की आवाज सुनकर के हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आता है, वो भी तशरीफ लाया और तस्मिया अल्फाज में कहा, हजरत मैंने भी यही ख्वाब देखा है। बहरहाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर इजहार तशक्कुर फरमाया और यही फिर उम्मत के अंदर राइज हो गया। अगले वाली इबारत देखिए, अल्फाजुल अज़ानी वल इकामत, अजान और इकामत के अल्फाज। वयुकब्बरु फी अव्वलिही अरबान वयुसन्ना तकबीर आखिरिही का बाकी अल्फाजिही। और आजान के शुरू में अल्लाह अकबर बोलेंगे 4 दफा और आजान के अखीर में अल्लाह अकबर 2 दफा बोलेंगे, आजान के बाकी अल्फाज की तरह। यानी ये आजान के कलमात के बारे में कहा जा रहा है कि अल्लाह अकबर की जब आवाज लगानी होगी तो शुरू में इसको 4 दफा बोलना है और जब इसी तकबीर, इसी अल्लाह अकबर को बोलना आखिर में तो 2 दफा, जैसे बाकी और अल्फाज अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद, जिस तरह इन सब अल्फाज को 2-2 दफा बोला जाता है, ऐसे ही अल्लाह अकबर भी अब आखिर में 2 ही दफा बोला जाएगा। अगले वाली इबारत है वला तरजीह फी शहादतैन, और शहादतैन में तरजीह नहीं है। तरजीह एक इस्तिलाही लफ्ज है। तरजीह का मतलब ये हुआ कि शहादतैन, दोनों शहादत, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये शहादतैन हुआ। आज़ान में जब ये कलमात कहे जाएंगे तो हनफीउल मसलक वाले तो बस हनफी मसलक के एतबार से इबारत आ रही है वला तरजीह फी शहादतैन, कि जिस तरह आपने हय्या अला सलाह, हय्या अला सलाह, हय्या अला फलाह, हय्या अला फलाह और दीगर कलमात को 2 दफा अदा करेंगे,
शहादतैन को भी आप 2-2 दफा ही बोलेंगे। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह और इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कहा वो तरजीह के कायल है। तरजीह का मतलब ये हुआ कि ये शहादतैन यानी दोनों कलमा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये दोनों कलमा को लौटाएंगे दोबारा। यानी पहली दफा वो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये पस्त आवाज में बोलेंगे। फिर अब इसको बुलंद आवाज में अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद। तो चारों कलमात, दोनों कलमात को पहले दफा मस्त आवाज में फिर दोबारा लौटाई जाए बुलंद आवाज में, यही तरजीह का मतलब है। हनफिया इसके कायल नहीं है। और अब अमलन शवाफी के यहाँ भी नहीं है, इन लोगों के यहाँ भी इत्तेफाक है कि अमल नहीं किया जाता है इसके ऊपर, इत्तेफाक रहा है, कहीं पर भी इसका अमल नहीं है। अगले वाली इबारत है वल इकामतु मिसलहु, और तकबीर यानी जब नमाज खड़ी होती है इकामत, वो आजान ही की तरह है। यानी जो जो कलमात आप आजान में बोलते हैं, इकामत में भी वही सब कलमात आपको कहने हैं। थोड़ी सी तब्दीली आ रही है, उसका तज़किरा आगे आपकी किताब वाले फरमा रहे हैं। यानी हय्या अला सलाह के बाद क़द क़ामतिस सलाह 2 दफा बोलना, अगली वाली इबारत में आप पढ़ेंगे। आगे वाली इबारत देखिए, व यज़ीदु बादा फलाहिल फज्र अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, और फजर की अजान में हय्या अला सलाह के बाद ज्यादा करेंगे अस्सलातु खैरुम मिनन नौम के अल्फाज को 2 दफा। फजर की अजान में हय्या अलल फलाह के बाद ज्यादा करेंगे अस्सलातु खैरुम मिनन नौम के अल्फाज को 2 दफा। यानी फजर की जब अजान होगी तो उस मौके पर हय्या अलल फलाह के बाद आपको अस्सलातु खैरुम मिनन नौम भी बढ़ाना है, 2 दफा ये बढ़ाना है। इसका पस मंजर ये बताया जाता है कि हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो खादिम खास हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो खास मुअज्जिन रहे हैं मस्जिद नबी के, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजान देने के बाद नमाज के लिए बेदार करने के हजरत सोए हुए थे। तो उस मौके पर हजरत बिलाल ने अपनी तरफ से इस अल्फाज को इस्तेमाल किया था, अस्सलातु खैरुम मिनन, हजरत सोए हुए थे, इस एतबार से उस मुनासबत से उनके मुंह से ये अल्फाज निकले थे, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल के मुंह से जब इन अल्फाज को सुना तो हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा अहसना हादा या बिलाल इजअलहु फी आदानिका, बिलाल ये कितने बेहतरीन कलमात है, इसको आप अपनी आदान में शामिल कर लीजिए। चुनांचे उस दिन के बाद से अब पूरी उम्मत का इत्तेफाक है कि फजर के आदान में इसका इजाफा किया जाएगा और दूसरी आदान में कहीं भी इजाफा नहीं है। अगली वाली इबारत देखिए, वबाद फलाहिल इकामती कद कामतिस सलाह मर्रतैन, और तकबीर यानी इकामत यानी वही तकबीर के हय्या अलल फलाह के बाद कद कामतिस सलाह 2 दफा बोलेंगे। यानी जब हय्या अलल फलाह बोल दिया जाएगा तो अब उसके बाद कद कामतिस सलाह भी 2 दफा बोलना है। ये तकबीर के बारे में है। अगले वाली इबारत देखिए, व यतमहलु फिल अज़ान व युस्रिउ फिल इकामती, और ठहर ठहर करके आजान देंगे और जल्दी करेंगे इकामत में। यानी आजान के अंदर ठहराव रहेगा, जल्दी जल्दी पढ़ने बोल दिया, पढ़ दिया, सुना दिया, ये मतलूब के मकसूद के खिलाफ है। मकसद तो लोगों तक पहुंचाना है आवाज को, लिहाजा ठहर ठहर करके बुलंद आवाज में आजान दी जाए, जैसा कि सिलसिले की तफसील आगे आ भी रही है। और इकामत में जल्दी की जाएगी, यानी आजान की तरह जो ठहराव आजान में बताई गई है वो नहीं रहेगी उसके अंदर, वो जल्दी वही उसलिए फिर इकामत के अंदर जल्दी की जाएगी। अगली वाली इबारत देखिए, हुक्मुल अज़ान बगैर अरबिया, बगैर अरबी के बगैर अरबी अल्फाज के अजान का हुक्म, वला युजज़ु बिल फारसियती व इन उलिमा अन्नहु अज़ानुन फिल अज़हर, और फारसी ज़बान में अजान देना काफी नहीं है अगर से जाना जा रहा हो ये कि ये अजान है, जाहिरी रिवायत यही है। खुलासा ये हुआ कि सिर्फ और सिर्फ अजान और इकामत अरबी जबान में कही जाएगी, अरबी जबान के अलावा फारसी या दूसरे और भी किसी जबान में इसकी अदायगी नहीं होगी, क्योंकि ये शायर है और शायर जो है जिस हिसाब किताब में है उसको उसी हाल में रखा जाएगा।
عربی زبان کے علاوہ دیگر کوئی زبان میں استعمال نہیں کریں گے انشاءاللہ. اب اگلا سبق اگلی عبارت اگلے سبق میں. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.